ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠକୁ ପଢ଼ିବା। ଭାରତରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଯଦି ତୁମମାନେ ନ ଦେଖିଛ ତାହେଲେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକରି ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିପାରିବ। ଆଜି ଆମେ ବାକି ରହିଯାଇଥିବା ଅଂଶକୁ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦଙ୍କର ମୂଳ ନାଁ ଥିଲା ମୋଇଉଦ୍ଦିନ ଅହମଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା, ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦଙ୍କର ମୂଳ ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ? ମୋଇଉଦ୍ଦିନ ଅହମଦ। ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାକି ଜିନିଷ ଜାଣିବା। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନ୍ସ ଫ୍ରିଡମ୍ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ନା 1992ରେ ମରଣୋତ୍ତର ଭାରତ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ତାଙ୍କୁ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେ 1992 ମସିହାରେ କ'ଣ ପାଇଲେ? ଭାରତ ରତ୍ନ ପାଇଲେ। କିଏ? ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ। ତାଙ୍କର ମୂଳ ନାଁ କ'ଣ? ମୋଇଉଦ୍ଦିନ ଅହମଦ। ସେ କ'ଣ ଥିଲେ? ନା ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସେ ଜଣେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ବା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ। ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନ୍ସ ଫ୍ରିଡମ୍ ନାମର ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ 1992ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ନିହାତି ମନେ ରଖିବା। କେବେ ହେଇଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1920 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 1 ତାରିଖ। ଉକ୍ତ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା। ୟା ରିଲେଟେଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିବ କ'ଣ ନା ତିଲକ ପାଣ୍ଠି ଗୋଟେ ଆସିବ। ଏଇ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ କେବେ ହେଇଥିଲା? ନା ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ହେଇଥିଲା। ସେଇଦିନ ହିଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ସେଇଦିନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆଉ ଏଇ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ପ୍ରଥମ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। କେବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1। ଉକ୍ତ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କାହାର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଏଇଥିରୁ 3 ନମ୍ବରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। 1 ନମ୍ବରର ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, 3 ନମ୍ବର ପାଇଁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, 2 ନମ୍ବର ପାଇଁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତୟାରୀ କରିବା ତାର। ଇଂଲଣ୍ଡର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଏଡୱିନ୍ ମଣ୍ଟେଗୁ ଓ ଭାରତ ଭାଇସରାୟ ଲର୍ଡ଼ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ବିଧାନ ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ 1919 ଡିସେମ୍ବର 23 ଠାରୁ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 ନାମରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ଦେଖିବା ବୈଦେଶିକ ସଚିବ କିଏ ଥିଲେ? ଏଡୱିନ୍ ମଣ୍ଟେଗୁ ଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ଭାଇସରାୟ କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମର ଯେମିତି ଭାରତରେ ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଧରିବା ଭାଇସରାୟଙ୍କର ସେଇ ପଦବୀଟା ଥିଲା। ମାନେ ସିଏ ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା ଥିଲେ। ତାହେଲେ କିଏ? ଲର୍ଡ଼ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ। ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ କିଏ ଥିଲେ? ଇଂଲଣ୍ଡର ଏଡୱିନ୍ ମଣ୍ଟେଗୁ। ତ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂସ୍କାର କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁଡ଼ିକ କେବେଠାରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା? ତା ପୂର୍ବରୁ ପାଖାପାଖି ସେ 1917 ଆଡ଼ୁ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ତା ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଫାଇନାଲ କେବେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରଚଳିତ କରାଗଲା? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବା 1919 ଡିସେମ୍ବର 23। ସେଇଥିପାଇଁ ୟାର ନାଁ ହେଲା କ'ଣ ନା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919। ମସିହାଟା 1919 ଅଛି ନା, ତାରିଖ ବି ମନେ ରଖିବା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 23 ତାରିଖ ଠାରୁ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 ନାମରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଇନକୁ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ
क्वेश्चन हम जे भारत शासन आईन 1919 को आउ कौन बोली कहुए ना मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड संस्कार बोली कहुए कौन पाई ना वैदेशिक सचिव एडविन मॉन्टेगु एवं भारतर भाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये दी जन द्वारा ये संविधान संस्कारटा को कौन करा जाइथिला ना प्रस्तुत करा जाइथिला तेणु यार ना हो गला कौन मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड संस्कार। ठीक अच्छे आगू देखा इंडिया विन्स फ्रीडम देखो ये जो पुस्तक कथा वर्तमान कहते किए लिखिं ये होचंदी मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वाधीन भारतर प्रथम शिक्षा मंत्री से थिले से संविधान प्रणयन सभार सदस्य थिले 1992 कौन ना तांकु मरणोत्तर भारत रत्न भारत रत्न उपाधि कौन करा जाइथिला भूषित करा जाइथिला। ठीक अच्छे तापर देखिबा ये जन्म केबे 11 नवेम्बर 1888 देहांत केबे 1958 किंतु तांकू भारत रत्न उपाधि रे केबे भूषित करा जाइथिला 1992 देहांत किंतु आमे केबे देखुजे 22 फेब्रुआरी 1958 तामान से चली जिबा पर तांकू भारत रत्न उपाधि रे भूषित करा जाइथिला। बर्तमान देखा जो भारत शासन आईन 1919 आसला से किसी त्रुटि रही जाइथिला कौन से त्रुटि गुड़ाक टिके देखा भाइसराय और तांको कार्यकारी परिषद भारतीय संसद परिवर्ते ब्रिटिश मंत्रिमंडल निकट में उत्तरदायी रहिबो जीए भारत रे भाइसराय रहिबे एवं तांकर जे कार्यकारी परिषद रहिले वर्तमान चिंता करिबा जे वर्तमान नरेंद्र मोदी एवं तांकर मंत्रिमंडल से भारतीय मानक पक्षर उत्तरदायी न रही से अलगा को देश पाखे उत्तरदायी रहिबे ताल सेटा भारतीय मानक पई निश्चिंत भाव में कौन एटा हानिकारक हम तेणु से कहले जे भारतर भाइसराय और तांकर कार्यकारी परिषद भारतीय संसद परिवर्ते क्या निकट उत्तरदायी रहिबे ना ब्रिटिश मंत्रिमंडल निकट उत्तरदायी रहिबे एटा गोटे त्रुटि सी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करथिले किए मॉन्टेगु आ चेम्सफोर्ड। 2 नंबर पॉइंट कौन कहूँ राज्यपाल अधीन रे रखा जाइथिबा विभाग गुड़िक ठारू अपेक्षाकृत कम गुरुत्वपूर्ण विभाग मंत्रिमंडल अधीन रे रहिला तेणु सेमानू कौन करागला तामाने तांकर पावर रे कमी कर दिया गला केंद्रीय और प्रादेशिक व्यवस्थापक सभार सभ्य मानक पूर्वर थिबा मुसलमान संप्रदाय व्यतीत सिख और ख्रिस्टियान संप्रदाय भित्तिक निर्वाचन मंडली गठित करागला तामाने वर्तमान कौन करा जाउची तामाने वर्तमान भेद सृष्टि करिया पई मध्य चेष्टा करा जाउची भोटदान अधिकार को अधिक संकुचित कर दिया गला अधिक संकुचित कर दिया गलार अर्थ कौन तामाने लिमिटेड लोक ही भोट दे पारिबे समस्ते भोट दे पारिबे नहीं निर्दिष्ट वर्गर लोक माने ही भोट दे पारिबे नारी मानक भोट को भी मध्य संकुचित करा जाइथिला जे एई नारी माने ही दे पारिबे अन्य माने दे पारिबे नहीं। ठीक अछि एई गुडाक किछि त्रुटि थिला कोथिरे भारत शासन आईन 1919 का द्वारा प्रस्तुत होइतिला मॉन्टेगु एवं चेम्सफोर्ड ताकू मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड शासन संस्कार बोली मध्य कुहा जाए। वर्तमान आम देखा हंटर कमिटी रिपोर्ट एथुर 1 नंबर पर प्रश्न आसीपे 3 नंबर पर भी प्रश्न आसीपे तेणु आम एक भल भाव में देखा जालियानवालाबाग हत्याकांडर तदंत ପାଇଁ गठित है हंटर कमिटी ताहले हंटर कमिटी कौथिपाई गठन है प्रथम क्वेश्चन ना जालियानवालाबाग हत्याकांडर तदंत ପାଇଁ वर्तमान जेहेतु लोक एत मात्रा तातिले आउ प्रेसर पड़ा तेणु कौन करागला तेणु से कहले जे गोटे कमिटी गठन करा जिवो आउ सेइथिरे सीए वर्तमान सर्वे करिवे जे वास्तव में कौन होइतिला घटना कौन होइतिला तेणु ये जो जालियानवालाबागर हत्याकांडर कौन पाई ये जिनसटा है आउ केते लोक मरले वास्तव में दोषी किए एइथिपाई कौन करागला ना गोटे कमिटी गठन करागला तामाने हौ ठीक अच्छे पर देखा 1919 अक्टोबर 14 लॉर्ड हंटर नेतृत्व में 8 जन सदस्यों को नहीं ये जो कमिटीटा गठन करागला को कमिटी हंटर कमिटी ताले हेड किए रहिले नेतृत्व किए नेले लॉर्ड हंटर से कमिटीर नाम भी होगला हंटर कमिटी मसीहा मन रखा 1919 अक्टोबर 14 है केते जन सदस्यों को लेकिन 8 जन सदस्य जानापी कहीदे 3 जन भारतीय
आउ 5 जन किए थिले ना इंग्रेज सदस्य थिले। आउ ये जो 3 जन भारतीय को रखा जाइथिला सेटा भी केवल फॉर्मालिटी पई। आउ से जो भारतीय भी थिले से माने भी कहा पाखरे काम करथिले ना ब्रिटिश मानक पाखरे रही काम करथिले। तेणु केवल मन बुझाइया पई जे 3 जन भारतीय रहिले आउ 5 जन रहिले कोन इंग्रेज सदस्य रहिले। एही कमिटी एक धुआं बाण थिला, ता माने एटा केवल फॉर्मालिटी पई नामक मात्र करा जाइथिला। यार किछि यथार्थता नथिला कि उद्देश्य नथिला जे दोषी धरा पड़ू एवं दंड पाऊ। प्रकृत रे ब्रिटिश लॉर्ड्स सभा जनरल डायर को कार्य को अनुमोदन करथिले। मोस्ट इंपोर्टेंट माने ब्रिटिश लॉर्ड्स सभा से जनरल डायर को कार्य को कौन करथिले अनुमोदन करथिले एवं तांको पई ब्रिटिश जनसाधारण 30,000 पाउंड संग्रह करथिले। माने केते बड़ आश्चर्यजनक कथा। ता माने एटा पूरा प्री प्लान हेची। प्रथमे कौन है ना आम जाचे भाइसराय किए थे, भाइसराय थे चेम्सफोर्ड, सी रहिले हर्ताकर्ता दैव विधाता। तापर किए पळे आसिले, तापर पंजाब जदि वर्तमान देखा जमती देश किए रहिले नरेंद्र मोदी। वर्तमान राज्य को जदि आसवा कौन देखा जड़े मुख्य थे मुख्यमंत्री, तापर पुणी जिला को आसिले सेठी कलेक्टर। तेणु जेतेबेले पंजाब कथा आसिला सेठी जड़े थे ओ डायर, तांको ना थिला ओ डायर हैला। तो सी कौन कले ओ रु मन रखिबा, सी ऑर्डर देले काहाकू ना जनरल आर डायर को, जी आसिले आउ कहले फायर कर। तांकर भूल अच्छी ठीक अच्छी से, किंतु जेहेतु ओ डायर ऑर्डर देइचंदी कौन पे ना वर्तमान जिलार जने कलेक्टर कहिबे जे वर्तमान एई जगहटा को वर्तमान कौन करा जाऊ बंदी करा जाऊ। बाकी पुलिस मैन तो निश्चित भाव में करेंगे ना, कौन पे ना कलेक्टर ऑर्डर को फॉलो करिया पड़िबो। तेणु ठीक से भाव में होता। तेणु एमाने ब्रिटिश लॉर्ड सभा जनरल डायर कार्य को कौन करते ना अनुमोदन करते एवं तांको पई केते हजार पाउंड मन रखिया 30,000 पाउंड संग्रह करते। फाइनल भी किसी हेलानी, कौन करागला ना ओ डायर को केवल कौन करागला तांको पदवी तांको बाहर कर दियागला आउ तांको इंग्लैंड पठे दियागला। सेठी जाइकिरी तांको सम्मानित कले लोक, तांको खंडा देइकिरी तांको सम्मान दियागला जे जाओ तमे एते भारतीय माननकु मारी पारिचो, सेटा होची सबुठु बड़ कथा। ए रिलेटेड आउ गोटे भी कहानी अच्छी कि उधम सिंह जी कि से जालियानवाला हत्याकांड को देखी आखि आगे पिता माता हत्या होता। आउ सी परिशेष जाइकिरी ओ डायर को कौटी इंग्लैंड रे गुली मारी और निजर प्रतिशोध नहीं जानापी केवल कहीदे। तो हंटर कमिटी आम जापारे कौपाई जालियानवाला हत्याकांडर तदंत करा। हेड किए थे लॉर्ड हंटर थे। केते जन सदस्य नहीं 8 जन सदस्य, 3 जन भारतीय थे, 5 जन इंग्रेज थे। 1900 केबे 1919 अक्टोबर 14 मन रखा। आउ ए कमिटीर है कौन ना ये कमिटी गोटे धुआं मानी ब्रिटिश लॉर्ड सभा से निजे ही कौन करते ना अनुमोदन करते कौन ना एटा करा जाऊ ए कार्य बोले जनरल डायर को कार्य को अनुमोदन करते। कहले ना टिके पूर्वर जे ओ डायर ऑर्डर ही देले आर डायर को जे तुम जाओ एवं गोली मार। ए रिलेटेड गोटे मूवी मु सजेस्ट करी जदि देखिपार तुम मैंने निश्चित भाव में देख। बर्तमान केसरी 2 गोटे मूवी ए रिलेटेड निश्चित भाव में देख। एवं तांकु ब्रिटिश जनसाधारण 30,000 पाउंड देते, तमाने एटा प्री प्लान ही थिला। ठीक अच्छे। वर्तमान देखिबा जे कौन 1920 सेप्टेम्बर 4 रु 9 तारिख पर्यंत कोलकाता ठारे कांग्रेस एक स्वतंत्र अधिवेशन अनुष्ठित होइथिला। एठारे असहयोग प्रस्ताव गृहीत होइथिला। असहयोग प्रस्ताव गृहीत कोठी हैला प्रथमे ना 1920 सेप्टेम्बर 4 रु 9 पर्यंत कोलकाता ठारे कौन है ना कांग्रेस रो गोटे स्वतंत्र अधिवेशन अनुष्ठित हैला। एठी प्रस्ताव को गृहीत करा जाइथिला एवं 1920 डिसेम्बर मासरे नागपुर ठारे जो अधिवेशन है कांग्रेस रो वार्षिक अधिवेशन ने एटा कौन होगला ना अनुमोदन होगला। आग प्रस्ताव को ग्रहण करा जाए तापरे पास करा जिवो कि नहीं सेटा चिंता करा जिवो। आग प्रस्ताव रखा जिवो तापरे हाँ कि नहीं करा जिवो। तो आग प्रस्ताव गृहीत तापरे अनुमोदित। तो गृहीत कोठी हेतला ना 1920 सेप्टेम्बर 4 रु 9 तारिख पर्यंत से अधिवेशन चलता। कौटी चलता? कालकाटा चलता कांग्रेस रो।
तापरे केबे अनुमोदन केबे हला ना 1920 डिसेम्बर मासरे जाइकिरी कोठी हेइतला सेटा ना नागपुर रे हेइतला। फास्ट हेइतला कलकत्ता तापरे हला नागपुर। प्रथमे 1920 सेप्टेम्बर 4 रु 9 तापरे 1920 डिसेम्बर रे। ठीक अछि। हाँ वर्तमान देखिबा ये होचंती चेम्सफोर्ड देखिपारुथुव भारतर भाइसराय। ये होचंती वैदेशिक सचिव मॉन्टेगू जार आमे वर्तमान देखिले मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड कौन ना संविधान संस्कार जोटा को आमे देखिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स माने संस्कार। एपटे देखिपारुथुव आमे 1919 रे कौन हैला वर्तमान एले पढ़िले लॉर्ड हंटर विषय रे पढ़िले जे हंटर कमिटी कौन पे हेइतला ना जालियानवाला हत्याकांडर तदंत पे हेइतला। ठीक अछि। वर्तमान देखिबा असहयोग आंदोलनर कार्यक्रम। असहयोग आंदोलन माने असहयोग कौन ना न सहयोग असहयोग माने आमे कौनसी प्रकार आउ सहयोग करिबु नाही काहाकू इंग्रेज मानंकु। ता पूर्वरु ढेर सहयोग करा जाइछि। द्वितीय विश्व युद्ध रे भारतीय माने गले को आशा रे गले ना हमकु स्वाधीनता मिलिबो किंतु तापरे हमकु कोन मिलला तापरे हमकु जालियानवाला हत्याकांड मिलिला। तेणु वर्तमान महात्मा गांधी चिंता कले खिलाफत आंदोलन ने भी कौन हेले ना मुसलमान माने भी महात्मा गांधी को सपोर्ट करने स्टार्ट हो गले जेहेतु से सभापति भाव में कौन कले ना लीड करते खिलाफत आंदोलन विषय। तेणु वर्तमान संपूर्ण देश महात्मा गांधी को सपोर्ट करने रेडी एवं से असहयोग आंदोलन कार्यक्रम आमे देखिले या पूर्वर जे कलकत्ता और नागपुर रे केमती प्रस्ताव गृहीत है कौन है अनुमोदित है। बर्तमान देखा असहयोग आंदोलन कार्यक्रम 1919 मसीह भारत शासन आईन अनुजाई अनुष्ठित होगा निर्वाचन एवं सरकारी उत्सव वर्जन करागला। देख कौन ना जो निर्वाचन होबाकू थिला कौन आमे या पूर्वर देखिले जे 1919 मसीह भारत शासन आईन अनुजाई अनुष्ठित होगा निर्वाचन एवं सरकारी उत्सव से कौन कहले ना एगुड़ा सबू को आमे कौन करवा ना वर्जन करवा। दुई रे कौन सरकारी उपाधि फेरस्त आमे या पूर्वर देखिथिले जे महात्मा गांधी भी तांको उपाधि त्याग करथिले आउ कौन रवींद्रनाथ टागोर मध्य तांको उपाधि त्याग करथिले एवं आहुरी कौन है ना सरकारी पदवी इस्तीफा दबा ये सब कार्यक्रम वर्तमान कौन करा ना वर्तमान चिंता करा जाउछि ए गुड़ाक सब करा आईनजीवी द्वारा विचारालय वर्जन करा छात्र छात्री मान द्वारा सरकारी विद्यालय एवं महाविद्यालय वर्जन करें ताने जी जो स्तर में अच्छा से असहयोग करेंगे। आमे छात्र छात्री अच्छु आमे तुम मान इंग्रेज मान द्वारा परिचालित होता विद्यालय महाविद्यालय आमे आउ जीवु ही नहीं आमर पढ़ार ना यहाँ ही गला असहयोग। आउ आईनजीवी जो मैंने भारत में पढ़ा लिखा वकिल थे से भी मना कले आमे आउ कौन आमे आउ विचारालय भी जीवनी वर्जन कलु। जो मैंने उपाधि इंग्रेज मान अधीन जो मैंने रहीकि भल काम करते से उपाधि मिलूला से कहले उपाधि आमको जहाँ देच ताकू तुम नहीं जाओ जो सरकारी पदवी आमको रखीच आम चाकरी छाड़ू इस्तीफा देलु। यही सब कार्यक्रम नापी बर्तमान चिंता करागला। बर्तमान देखा गठनमूलक कार्य कौन है ना खदी ग्राम्य उद्योगर प्रसार हिंदू मुसलमान मध्य एकता सृष्टि अस्पृश्यता निवारण जातीय शिक्षानुष्ठान स्थापन कौन ना आमे खटिकी खाइबू आउ सहयोग करिबू नहीं आमे आउ फॉलो करिबू नहीं हिंदू मुसलमान मध्य एकता सृष्टि धीरे धीरे कौन है जिते बड़े कारण संपूर्ण भाव में असहयोग दरकार ना किसी भारतीय से हिंदू हूँ मुसलमान हूँ सिख हूँ ईसाई हूँ परिशेष भारतीय ना तो कौन है ना हिंदू और मुसलमान मध्य एकता सृष्टि होता निहाती आवश्यक थिला। तो गठनमूलक कार्य एकता भी पलैला अस्पृश्यता यही छुआछुतिर निवारण ताकू करागला एवं कौन जातीय शिक्षा अनुष्ठान स्थापन करागला एगुड़ा सब गठनमूलक कार्य पलैब। बर्तमान देखा फलस्वरूप कौन है
ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଡାକରାରେ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ନିରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ପରି ଖ୍ୟାତିନାମା ବାରିଷ୍ଟର ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟକୁ କ'ଣ କଲେ, ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଓକିଲାତି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓକିଲାତି ଛାଡ଼ିଲେ। ନା ଦୁଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରଖିବା, ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ, ନିରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ପରି ଖ୍ୟାତନାମା, ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ, ଫେମସ୍ ଥିଲେ କେଉଁଥିରେ, ନା ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାକିରିରୁ ବି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ। ଆମେ ସେଇ କଥା ଦେଖୁଥିଲେ ଉପରେ ଯାହା ଯାହା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଁ କିଛି ମନେ ରଖିବା, ଯେଉଁମାନେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ମାନେ ଲିଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ମାନେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଯେଉଁମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ନାଁ ଦେଉଛି। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ, ନା ଲିଡ୍ ନେଲେ। କେଉଁଥିପାଇଁ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ଏଇ ନାଁଟା ନୂଆ ଥିବ, ମନେ ରଖିବା, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଆମେ ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1। ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଉକ୍ତ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କାହାର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ କ'ଣ କରାଗଲା, ନା ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ ପାଣ୍ଠି ଯେ ସମସ୍ତେ ଯାହାର ଯାହା ବି ହେଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ କର। କେଉଁଥିପାଇଁ, ନା ଦେଶ ପାଇଁ। ୱେଲ୍ସର ଯୁବରାଜଙ୍କ ଭାରତ ପରିଦର୍ଶନକୁ ବାସନ୍ଦ କରାଗଲା। ୱେଲ୍ସର ଯୁବରାଜ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଭାରତ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, କହିଲେ ନା ଆମେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଦର୍ଶନ ବି ତମେ କରିପାରିବନି, ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ସହଯୋଗ କରିପାରିବୁନି, ପରିଦର୍ଶନ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏଇତକ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଅସହଯୋଗ ଏଇ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଥିଲା। ଦେଖିବା ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେବେ, 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇଠି ଦେଖ, ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚରଖା ଅଛି, ଖଟି ଖାଅ କାଟି ପିନ୍ଧ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଚରଖା ଚଳଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରିବେ ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓକିଲାତି ପଢ଼ିକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କେସ୍ ବି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବି ହେଇଛି। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଭଳିଆ ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଧୋତି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଇମୋସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଚରମ ଉଦାହରଣ କହିଲେ ଚଳେ। ଖ୍ୟାତନାମା ବାରିଷ୍ଟର ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ, ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଥିଲା 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଯାହାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ କ'ଣ କରାଗଲା, ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱରାଜ ଇଜ୍ ମାଇ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ସାଲ୍ ହାଭ୍ ଇଟ୍। ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ, ଏକଥା କହିଥିଲେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ 1922 ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଯେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଏ, ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଏ ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆ ନ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଆଇନମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ, ଆଉ କ'ଣ, ନା ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯିବ। କେତେ ଦିନ ଭିତରେ, 7 ଦିନ ଭିତରେ। କେବେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କୁହାଗଲା, 1922 ଫେବୃଆରୀ 1। ମନେ ରଖିବା 1922 ଫେବୃଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖ। ଏଇ ରିଲେଟେଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚେତାବନୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 1922 ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ଏଇ ଡେଟ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରଖିବା, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 1922 ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା
को राज्य उत्तर प्रदेश गोरखपुर अंचल चौरी चौरा नामक स्थान में उत्युक्त आंदोलनकारी माने भारतीय माने कौन कले एक पुलिस स्टेशन ने निया लगेदेले गोटे पुलिस स्टेशन ने रागिकी निया लगेदेले केते दिन दिया जाइथिला 7 दिन दिया जाइथिला वर्तमान 5 दिन है मात्र ता माने केते दिन जाइछि 4 दिन ही जाइछि तो लोक मैंने कौन कले ना संभाली पारे ना आहरी समय भी थिला 2 दिन से स्टेप किसी नहीं था कि न नहीं था देखा जाता किंतु जो मैंने आंदोलनकारी थे से मैंने संभाली पारे ना उत्तर प्रदेश गोरखपुर अंचल चौरी चौरा नामक स्थान में 1922 फेब्रुआरी 5 तारिख में कौन कले ना सीधा गोटे पुलिस स्टेशन में निया लगेले या फल 22 जन पुलिस कर्मचारी जीवंत दग्ध हो गले जली पोड़ी से 22 जन ऑन मले जनसाधारण अहिंसा उपाय असहयोग आंदोलन पर संपूर्ण रूपे प्रस्तुत नथिबार मन करी गांधीजी आंदोलन स्थगित रखापी घोषणा कले महात्मा गांधी चिंता कले ना वर्तमान सुधा भी एमाने अहिंसा उपाय असहयोग करेंगे ठीक अच्छे किंतु अहिंसा उपाय एमाने करने मानसिक भाव में प्रस्तुत नुहंती कौन पे ना हिंसा हो गला जितेबाला लगेदेले निया लगेदेवाटा हिंसा वर्तमान समय थिला तांको पाखरे फेब्रुआरी 12 तारिख में बरदोली ठारे इंपोर्टाट केबे ना से 1922 फेब्रुआरी 12 तारिख में बरदोली ठारे कौन करागला कांग्रेस कार्यकारिता बैठकर आंदोलन स्थगित घोषणा अनुमोदित होइतिला आउ कौन है ना से कहले जे वर्तमान विथड्र करनवा कौन असहयोग आंदोलन को कौटी ना बरदोली ठारे कांग्रेस कार्यकारिता बैठक में आंदोलन स्थगित घोषणा अनुमोदित हो जाइतिला सुभाष चंद्र बोस यही आंदोलन कौन पे आम टिके पूर्व देखी राजगोपालचारी थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी गोपबंधु दास थे से सुभाष चंद्र बोस भी मध्य थिले सुभाष चंद्र बोस ये जितेबाला जड़े पार्टिसिपेट करुँच हठात किना जितेबाला आंदोलन को बंद करा जाउची सेतेबाला कौन हम से सुभाष चंद्र बोस थे टिके नाकू कठोर लोक सी कौन कहते जे जदि हिंसा होची हिंसार जवाब आम हिंसार दबा तेणु सुभाष चंद्र बोस यही आंदोलन स्थगित निष्पत्तिटा को से कौन कहले ना एक जातीय विपर्जय बोली वर्णना करथिले कहले एटा गोटे साधारण कथा नुह एटा गोटे जातीय विपर्जय हैला बोली आम चिंता करिबा ठीक अच्छे तो वर्तमान यही तक जिनस जना पड़ला कौन है ना प्रथमे 1922 फेब्रुआरी 1 तारिख तांको 7 दिन समय दिगला जे तुम ता भीतर राजनैतिक बंदी मान को मुक्त कर संवादपत्र को पूर्ण स्वाधीनता दि जाऊ किंतु 1922 फेब्रुआरी 5 तारिख में राजनैतिक कौन आमर आंदोलनकारी मैंने कौन कले ना से माने उत्तर प्रदेश गोरखपुर चौरी चौरा नामक स्थान में गोटे पुलिस स्टेशन में सीधा निया लगेले ऑन स्पॉट 22 जनकर मृत्यु होता ठीक अच्छे आउे पुणी नेक्स्ट कौन जितेबाला टाइम दिगला तापर माने अहिंसा आचरण करें ना हिंसा आचरण कले महात्मा गांधी चिंता कले जो बर्तमान स्थगित करने फेब्रुआरी 1922 फेब्रुआरी 12 तारिख में कौन करागला ना बरदोली ठारे कौन ना उक्त आंदोलन को स्थगित घोषणा कर दिगला अनुमोदित भी होगला सुभाष चंद्र बोस ये आंदोलन स्थगित को कौन कहले ना यहाँ गोटे जातीय विपर्जय फलाफल देखा 1922 मार्च 10 तारिख में गांधीजी को गिरफ्त करा जाई 6 वर्ष जेल दंड दि जाइतिला केते वर्ष 6 वर्ष जेल दंड दि जाइतिला केबे गिरफ्त करागला मार्च 10 तारिख में 1922 रे मुस्तफा कमाल पाशांग नेतृत्व में तुर्की रे साधारणतंत्र प्रतिष्ठित होगा द्वारा सेठारे खलीफा व्यवस्थार उच्छेद होता क्वेश्चन आसीबो जे कहार नेतृत्व में तुर्की रे साधारणतंत्र प्रतिष्ठा होगा द्वारा सेठारे खलीफा व्यवस्थार उच्छेद होता ना मुस्तफा कमाल पाशांकर ठीक अच्छे केबे होता 1922 रे होता महात्मा गांधी को केबे गिरफ्त करा जाई 6 वर्ष जेल दंड दि जाइतिला ना 1922 मार्च 10 ठीक अच्छे तो आज वीडियो रे आमे एतिक रखिबा या पर आमे देखिबा असहयोग आंदोलन ओडिशा रे किभଳି भाବରେ प्रभाव पकेइतिला परवर्ती वीडियो रे द्वितीय पाठ हमर सरीबो या पूर्वरु आमे प्रथम पाठर 3टा वीडियो करि सारिचे सेटा प्ले लिस्ट रे अछि तमन जदि देखि ना देखि परिबो ता रिलेटेड एमसीक्यू मध्य पाखापाखि 60 रु 70 एमसीक्यू करा जाइछि एवं आमे असहयोग आंदोलन रे खिलाफत आंदोलन गोटे वीडियो देखिथिले वर्तमान भारत रे तार पाखापाखि प्रभाव कोन पड़िथिला आज आमे पढिले
समय दे वीडियो को देखि समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।